A very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 5th of your political science book, that is Women Change the World. So, in our last class, we have discussed about the women's movement. Okay, so there are so many movements there are so many movements where women stand for themselves, girls stand for themselves to have their legal rights, right to study, right to go to schools, and right to have some right to be protected from violence, etc., etc., so many things. Okay, so there are some things, okay, some struggles from some glimpses of the struggles, okay, how women got their independence, or how women started their movement, what are the types of movements. Okay, so first one is campaigning. What is campaigning? Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the movement. So, before going further, first of all, we will know the meaning of campaigning. Campaigning क्या है? ठीक है, कैंपनिंग इट मीन्स लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंपेन्स। कैंपेन्स क्या है आपके हिंदी में आपने एक वर्ड यूज सुना होगा कि अभियान चलाते हैं, ठीक है। तो कैंपेन्स को अगर हिंदी में बोलते हैं तो अभियान होता है। अदरवाइज इट मीन्स अ प्लान टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है। ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि हमें कुछ पाना होता है, ठीक है, कुछ अचीव करना होता है। तो इसमें हम अलग अलग चीजें करते हैं। So, campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of women's movement. For discrimination, भेदभाव, ठीक है, जो जेंडर के बेसिस पे से आपके जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है वुमेन के साथ, ये सबसे बड़ा आपका कैंपेन था कि हमें वुमेन को भी क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। सो कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड। कैंपेन्स की वजह से बहुत से ऐसे लॉज थे जो पास हुए, ठीक है। अ लॉ वाज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स, ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, सम लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। एक 2006 में इंडिया में एक लॉ पास हुआ था, और वो लॉ किसके लिए था कि जो भी वुमेन फिजिकली या फिर मेंटली, ठीक है, फिजिकली या फिर मेंटली उनके साथ कोई वायलेंस हो रहा है, ठीक है, कोई हार्मफुल इंसिडेंट हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो उसको प्रोटेक्ट, लीगली वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो 2006 में ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस का एक लॉ पास हुआ था। Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions, ठीक है। सिमिलरली आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, वुमेन्स मूवमेंट जो भी एफर्ट्स वुमेन्स मूवमेंट के थ्रू हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी। कौन से ईयर में? 1997 में उन्होंने निकाली थी। किसके लिए? कि वी हैव टू प्रोटेक्ट वुमेन from sexual harassment. Sexual harassment, what is the meaning of sexual harassment? It means some kind of behavior characterized by the making of unwelcome or inappropriate sexual remarks, or you say physical advances in a workplace or other professionals or social situation. It is known as sexual harassment। कि वर्कप्लेस पे, बेसिकली वर्कप्लेस पे या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या है, सेक्सुअली फेवर मांगा जाता है, फिजिकली फेवर मांगा जाता है, या फिर कुछ ऐसी टर्म्स यूज की जाती है फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर को लेके। तो दैट इज बेसिकली नोन एज सेक्सुअल हेरेसमेंट।
ठीक है। तो गाइडलाइंस निकाली थी सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में, किसके अगेंस्ट? सेक्सुअल हेरेसमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने गाइडलाइंस निकाली थी कि वर्क प्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अगर सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है तो क्या क्या लीगली एक्शंस लिए जा सकते हैं। In the 1980s, for example, women's groups across the country spoke out against dowry deaths, cases of young brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowry. Women's groups spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming on the streets, approaching the courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. First of all, what is dowry? Dowry means you can say all the gifts or things, materialistic things given by girls parents to the in-laws or husband of their daughter. ठीक है, जो आप दहेज बोलते हो, ठीक है, वो क्या है? डाउरी होता है। तो 1980 में भी क्या है, बहुत से वुमेन ने क्या किया था, औरतों ने क्या किया था, हमारी कंट्री में आवाज उठाई थी डाउरी के लिए, दहेज के लिए, क्योंकि सामने क्या आ रहे थे, डाउरी डेथ्स के केसेस बहुत आ रहे थे कि डाउरी के वजह से जो हस्बैंड थे वो अपनी वाइफ को मार देते थे, या फिर इन लॉज जो थे वो उसको मार देते थे, या फिर उनको इतना टॉर्चर किया जाता था कि बहुत सी ब्राइड्स जो है वो सुसाइड कर लेती थी। तो ऐसे इतने सारे मामले या फिर आप इतने सारे केसेस जो है सामने आए थे, तो वुमेन्स ग्रुप ने इसके बारे में बोला, ठीक है। और जब जस्टिस नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, वो स्ट्रीट्स पे आ गई, ठीक है। स्ट्रीट्स में मतलब आने के बाद उन्होंने क्या किया, कोर्ट्स के पास अप्रोच किया, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की, और बहुत ही क्या हुआ, ऐसे जब स्ट्रीट्स में आने लगे बहुत सी इंफॉर्मेशन, जब वो बहुत सी इंफॉर्मेशन जब शेयर करने लगे तो ये एक पब्लिक इश्यू बन गया, जो न्यूज़पेपर में क्या है स्प्रेड होने लग गया, सोसाइटी में स्प्रेड होने लग गया, एंड उसके लिए डाउरी लॉस बनी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, जो आपकी गवर्नमेंट थी उन्होंने डाउरी के अगेंस्ट लॉज बनाए, और क्या उस लॉ में लिखा गया था कि जो भी फैमिलीज डाउरी लेगी या फिर डाउरी के लिए टॉर्चर करेगी तो उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। सो जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स। देखो ये जो पिक्चर है, आप अपने स्क्रीन में जो राइट हैंड साइड में पिक्चर देख रहे हो, Satyarani, an active member of the women's movement, sitting on the steps of the Supreme Court, surrounded by legal files gathered during the course of a long legal battle to seek justice for her daughter who was murdered for dowry. देखिए, ये सत्य रानी एक मेंबर थी, ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट की एक मेंबर रही है। ये 1980s के टाइम पे देखो बहुत सारी फाइल्स जो है स्टेयर्स पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जस्टिस के लिए, अपने डॉटर के जस्टिस के लिए क्या कर रही है, यहाँ पे बैठी हुई है कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है तो मुझे जस्टिस चाहिए। तो ये एक टाइप का कैंपेनिंग है, ठीक है। उसकी डॉटर को डाउरी के लिए मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था, तो उसके जस्टिस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के स्टेयर केस पे बैठी हुई है। ये देखो बहुत से ऐसे कैंपेन्स में जो स्ट्रीट्स पे लोग आते हैं तो साथ में पोस्टर्स या फिर बैनर्स लाते हैं, तो देखो वुमेन आर नॉट फॉर बर्निंग, हत्यारे को सजा दो, दीज आर लाइक सम ऑफ द स्लोगन्स यूज्ड बाय देम कि हमें जस्टिस चाहिए, ठीक है। Okay, now raising awareness. How we can aware people about these laws, about different things, ठीक है। तो अवेयरनेस, सोसाइटी में अवेयरनेस करना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए क्या है लॉ बनाया हुआ है हमारी कंट्री में, ठीक है। डाउरी के लिए लॉ बनाया गया है कि अगर कोई डाउरी लेता है तो उसकी उनकी फैमिलीज को पनिश किया जाएगा। तो अवेयरनेस लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना। An important part of the women's movement's work is to raise public awareness on women's rights issue. Their message has been spread through street plays, songs, and public meetings.
Many of us don't know about different kinds of laws कि ठीक है वुमेन के राइट्स होते क्या हैं, ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं है। तो पब्लिकली ठीक है मासली पब्लिक को अवेयर करना कि वुमेन के राइट्स के बारे में, क्या क्या वुमेन जो है क्या क्या चीजें सहन कर रही है, उसका मैसेज स्प्रेड करना किसके थ्रू, स्ट्रीट प्लेस, ठीक है जो नुक्कड़ नाटक बोलते हो हिंदी में, ठीक है स्ट्रीट प्लेस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, आज के टाइम पे मूवीज के थ्रू भी किया जाता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट सीरियल्स के थ्रू भी किया जाता है, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेस्टिंग। देखो ये पिक्चर भी देखो, यहाँ पे एक लड़की नाटक कर रही है, ठीक है ये नुक्कड़ स्ट्रीट प्ले का जो है ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है ये एक पोस्टर के साथ वो बता रही है, एक औरत एक वुमेन जो है पोस्टर के साथ लोगों को बता रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट करना कि मतलब आवाज उठाना। The women's movement raises its voice when violation against women take place, for example when a law or policy acts against their interests. Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attentions to injustices. वुमेन्स मूवमेंट जो है, औरतें जो हैं अपनी आवाजें उठाती है, कब, जब उनके साथ कोई ऐसा हार्मफुल बिहेवियर होता है, कोई वायलेशन होता है कि वुमेन जो है टेक प्लेस, और जैसे कि कोई ऐसी लॉ बन चुका है, कोई ऐसा लॉ बना है, कोई ऐसी पॉलिसी बनी है जो जिससे वुमेन को बहुत ज्यादा लॉस होगा, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, वुमेन जो है प्रोटेस्ट करती है, ठीक है अगेन वो पब्लिक रैलीज करती है, ठीक है एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, डेमोन्स्ट्रेट मतलब डिस्क्राइब करके बताती है कि हम ये जो है हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो हमें न्याय चाहिए। तो प्रोटेस्टिंग इज ऑल्सो द वे of women's movement. Next thing is showing solidarity. What is the meaning of solidarity? Solidarity means unity, एकता, ठीक है जो यूनिटी है ना, यूनिटी का ही सिनोनिम है सॉलिडेरिटी। showing solidarity, the women's movement is also about showing solidarity with other women and causes, कि यूनिटी दिखाना। वुमेन्स मूवमेंट का मतलब ये भी है कि हम दूसरे ग्रुप ऑफ विमेन के साथ क्या है, एकता दिखाएं, हम मजबूती दिखाएं, ठीक है और हम यूनिटी दिखाएं। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन बोल रही है कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस, हमें लॉ नहीं चाहिए, एक ग्रुप ऑफ वुमेन बोल रही है हमें चाहिए, नहीं, ये वुमेन के साथ सही नहीं हो रहा है। तो वुमेन मूवमेंट को क्या है, वुमेन्स मूवमेंट के साथ सॉलिडेरिटी, यूनिटी दिखानी चाहिए। देखिए ये जो हम 8, आप सबको पता है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बिलो ये जो पिक्चर है, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल्स, ठीक है बहुत सी वुमेन जो है सेलिब्रेट करने भी आई है, या फिर ऐसे वुमेन्स मूवमेंट हुए हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है कि हमें कोई जस्टिस मिल जाए, या फिर उनके प्रोटेस्ट की वजह से कोई लॉ बना है। तो वो और वर्ल्ड की बहुत सी औरतें क्या करती है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करती है। और ये जो पिक्चर राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, women are holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan. Every year on 14th of August, several thousand people gather at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. अब देखिए 14th of August को 1947 में जो है इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था और इंडिया इंडिपेंडेंट भी हुआ था। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, ये जो पिक्चर है, कैंडल्स, वुमेन जो है अपने हाथ में कैंडल्स को पकड़े हुए हैं और यूनिटी दिखा रही है। इंडिया के जो वुमेन है और पाकिस्तान की जो वुमेन है वो साथ में मिलके वाघा बॉर्डर जो अमृतसर में है पंजाब में, वहां पे जाती हैं बॉर्डर्स में और क्या करती है, साथ में कैंडल्स को जलाती है और बहुत से कल्चरल प्रोग्राम्स भी करती है। तो ये क्या दिखा रही है, यूनिटी दिखा रही है वुमेन पावर की। ओके ये देखो ये भी उसी का ही एक
पिक्चर है कि कैसे वो लोग जो वुमेन है वो यूनिटी दिखा रही है, साथ में प्रोटेस्ट कर रही है. सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सो वुमेन चेंज द वर्ल्ड. सो एज यू सी कि वुमेन का जो रोल है हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने का, कितना इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, जो हमने स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं या फिर सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो हमें उन्हें ब्रेक करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है या गर्ल्स जो है, जो उनको जो बोल दिया गया है या फिर एक पर्टिकुलर जो उनको सिनेरियो बता दिया गया है कि बस आप टीचर्स ही बन सकते हो, बस आप नर्सेज ही बन सकते हो, या फिर व्हाटएवर कि आपको हाउस होल्ड वर्क ही करना चाहिए. तो ये स्टीरियोटाइप्स जो है, जो ये बिलीव्स हैं, ये हमें क्या करना है, ब्रेक करना है. ऐसा नहीं होता. वुमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में. और वुमेन ने बहुत से स्ट्रगल्स, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वुमेन जो हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारी सोसाइटी में. आज के टाइम पे जो बहुत सारे हम इक्वालिटी के साथ पढ़ सकते हैं, इक्वालिटी के साथ अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, तो उनमें उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. So we should respect, either it is a girl or a boy, everyone should respect everybody. ठीक है, either it is a boy or a girl. हमें क्या है, दोनों ही जेंडर को, ठीक है, इवन और भी ट्रांसजेंडर्स भी हैं या फिर हमारी सोसाइटीज में और भी क्रिएचर्स हैं, सबका क्या है, इक्वली हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे नीचा है या फिर ये वुमेन है या फिर ये इस कास्ट की है तो ये हमसे बहुत ज्यादा क्या है, लोअर कैटेगरी की है. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ठीक है. सो this chapter is all about women and their protest and their movements. So thank you so much for listening to me. Please take care of yourself.